the destruction that has gone over the years. Madam, we have three regions of the state, distinct regions, Ladakh, Jammu and Kashmir. All united together, it's like a mini India. And if we do not protect everyone in that mini India, we will not be able to safeguard the people of that state. One of the things that is very important is this unfortunate killing that takes place. It's all right if you kill militants, none of us will be against it. But when civilians get killed into it, it has a great shock, and those of us who stand with this nation are really pulled back. We no longer hold our ground. Therefore, my request to the Government of India is, sir, Madam, that something has to be done immediately, not waiting too long. And it has to be done now. Unless we do this. Now, many of even our projects have not been undertaken. Already, you have seen yourself, sir, even the tunnel that had to be started long time ago in Zujila still stands undone. Rail, which should have been there in 2015, still is not there. And they say now it's 2015 that we'll see the rail. The road itself is in a very bad critical condition. Just 30 kilometers between Ramban and Banihal. This stretch continues to create trouble for us. Small rain and that road is washed out. Madam, as you know, this used to be a heaven once. Unfortunately, it has been turned into a hell. Now this hell can be retrieved now. Many of you will not like if I say that our neighbor has a part of our land. You all know that land exists with them. Part of that land has been given also to China, Akshay and the areas, which they had no right to give, but they did give it. Now, I'm very sorry to say, no solution from terrorism will come till some sort of a way is found in talking to that country. Now, already you have seen, you have got a corridor for the Sardars to visit Kartarpur. Yes. Now, similarly, our Kashmiri Pandit brothers want Sharika Devi, the temple, to be visited. No action has been taken to this day that some movement should be made so that these people could go and visit the temple. That has not been done. Thank you. Sir, my request to you is that unless we move forward without hatred between each other, many of the policies I may not like of yours, and many of the policies you may not like of mine. But if India has to survive, then Kashmir has to be given a priority that it needs. No longer, madam, I beg of you, no longer can we continue to suffer as we are suffering today. Now, how much you may say, every village is electrified. But when we have no electricity, what will you electrify? To this day, we continue to suffer after 70 years of independence of India. We do not have a good power. This needs, I need only 1 minute more. I request to all of you, all members of this House, irrespective of which party you belong to, please help us to get that state back to normal. Not by killing, but by winning hearts. Prime Minister himself announced from the rampart of the Lal Killa that we have to win the hearts. And I want to say here, the last word, what Bajpai ji said on the borders of, just near the Pakistani border, and they could hear what he was saying. He said, friends can be changed, neighbors cannot be changed. And neighbors, we either live with friendship with them and progress, or live with disharmony, and thereby our progress and their progress will come down. My appeal to all this House and to every Indian is, please own Jammu and Kashmir, own the people of Kashmir. We are not Pakistanis. We are not militants. We are part of this land. We have joined this land. Please help us to get out of this tragedy that we are facing today. Thank you, ma'am, for your time. Now, Minister. अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं इस सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस सदन ने राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 19 दिसंबर 2018 को जो संविधान की आर्टिकल 356 के अंतर्गत
प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है उसको अनुमोदित किया है, इसलिए उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अपना यह स्टैट्यूटरी मोशन मूव कर दिया, स्टैट्यूटरी मोशन बिना चर्चा के पास हो गया। हकीकत यह है कि मैं भी चाहता था कि इस पर चर्चा हो। ज्यों ही आपने मुझसे पूछा कि अब यह तो मोशन पास हो चुका है, क्या उसके बाद भी मैं कुछ लोग बोलना चाहते हैं, सहज रूप से मैंने अपनी सहमति दे दी कि नहीं, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। और जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में विचार व्यक्त किया है, बहुत ही गंभीर विचार व्यक्त किए हैं, सबके विचारों को हमने अच्छी तरह सुना भी है, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है डेलिबरेशंस और डिस्कशंस। यह होने चाहिए, इससे किसी को बचना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदया कि जून में जिस समय राज्यपाल शासन की वहां पर घोषणा हुई थी, तो उसके पहले वहां के जो तत्कालीन राज्यपाल थे बोरा साहब ने वहां की सिचुएशन के बारे में एक लिखित जानकारी जो राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। यदि मैं उसका उल्लेख करूं तो लंबा समय लगेगा, इसलिए बहुत डिटेल में जाकर उल्लेख नहीं करूंगा। मैं कुछ सेंटेंसेस उसके कोट करना चाहूंगा। गवर्नर ने यह कहा है, आई स्पोक ऑन फोन टू श्री कविंदर गुप्ता, he is at Delhi to ascertain whether BJP would stake claim to form government in collaboration with any other party and was informed that BJP has no such intention। BJP के बारे में कहा है। उसके बाद कहा है, consequent to the resignation of the chief minister, I spoke on phone with Mr. G.A. Jamir, President Jammu Kashmir Pradesh Congress Committee, to ascertain his party's position consequent to the fall of the PDP-BJP government. He informed me that the Indian National Congress Jammu Kashmir does not have the requisite numerical strength to stake claim to form the government of the state on its own or in conjunction with any other political party. He favored the imposition of governor's rule in the state। माने उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी इसको समर्थन अपना दिया। आगे गवर्नर यह लिखते हैं कि इन द अबव कंटेक्स्ट it would be seen that as of today, the 19th June 2018, no political party or coalition of parties in Jammu and Kashmir is in position to stake claim for forming government in the state। इन परिस्थितियों में जून में अध्यक्ष महोदया वहां पर राज्यपाल शासन की यह घोषणा करनी पड़ी, और बीच में लगातार लगभग 5.5-6 महीने तक वहां पर असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया गया था। इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। हो सकता है कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करके यदि गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो राज्यपाल उसके लिए तैयार थे। लेकिन इस बीच किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई क्लेम नहीं किया कि वहां पर कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। इन परिस्थितियों में मजबूर होकर राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति शासन को अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ी है। और जब यह परिस्थिति हुई, हमने देखा कि एक शख्स को ये कोशिश कर रहे थे कि वो लोगों को खरीद के हुकूमत बनाए। ये आपके सामने ईमानदारी से मैं बात रख रहा हूं। आप नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं आप नहीं मानेंगे। वो जो पीछे बैठे हैं आपके, मैं जानता हूं वो क्या है, मैं आपको सुनाता हूं। फिर क्या हुआ कि महबूब जी के पार्टी जो पीडीपी है, उन्होंने हमसे कहा कि साहब हम हुकूमत बनाएंगे, क्या आप हमारा साथ देंगे? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह फैसला किया कि हम साथ देने के लिए तैयार हैं, हम शामिल नहीं होंगे, साथ देंगे। कांग्रेस ने भी यही कहा। मगर उस दिन आपको याद होगा राष्ट्रपति जी और गवर्नर साहब को फैक्स भेजा गया, उनकी फैक्स मशीन काम नहीं करती थी। और कमाल ये देखिए कि फैक्स मशीन नहीं काम करती है, उनका फोन भी काम नहीं करता है। मगर उसके बाद भी मैं आपसे कहूंगा, मैं माफी मांगता हूं ये कहने का, गवर्नर का घर ये साबित करने के लिए नहीं है किसकी बहुमत है। असेंबली है जहां पर कि साबित हो किसकी गवर्नमेंट बन सकती है, किसी की नहीं बन सकती। उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया, उन्होंने सीधा डिसॉल्व कर दिया, जो गलत था। मैं मानता हूं जो गलत था।
ये अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि यह गवर्नर के घर पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। वह होगा तो सदन में ही यह सिद्ध हो सकता है कि किसके पास मेजॉरिटी है, कौन गवर्नमेंट बनाएगा नहीं बनाएगा। जो अभी जो गवर्नर की हमने रिपोर्ट पढ़ी है, गवर्नर ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत करने के बाद तब यह रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। एक मिनट, जून की बात में कर, अब दिसंबर पर मैं आता हूं। एक मिनट, मैं दिसंबर की बात पर आता हूं अध्यक्ष महोदय। दिसंबर में जब 19 दिसंबर को यह राज्यपाल शासन समाप्त हो रहा था, स्वाभाविक है कि उसके एक दिन पहले ही गवर्नर को इस बात का फैसला करना था कि आगे प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए यहां पर जो है कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ कर दी। मैंने स्वयं भी एक बार पूछा, क्या कोई वहां गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं है? एक बार अखबारों में मैं यह खबर पढ़ी थी अध्यक्ष महोदय कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर वहां पर गवर्नमेंट बनाना चाहती हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहती हूं। तो उसी दिन सुबह मैंने स्टेटमेंट देखा कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में लीडर अपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब का। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में हम इस प्रकार की कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहेंगे। मेरी भी धारणा यह बन गई कि शायद वहां पर कोई भी अपनी गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है। फिर एक मिनट, पूरी मेरी बात सुनिए। Please let him complete. That is on the card. Let him complete. आप अपना कंप्लीट करिए वचन। Yes. तो अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी गवर्नर साहब से भी मैंने पूछा क्या कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, कोई किसी सरकार नहीं बनाना चाहता और किसी ने अपना क्लेम भी हमारे पास पेश नहीं किया है। तो वैसी सूरत में राज्यपाल के सामने और कोई दूसरा विकल्प अध्यक्ष महोदय शेष नहीं बचता। तब उन्होंने अपने रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे शशि थरूर साहब ने कहा, यह अननेचुरल मैरिज थी। अब इसको अननेचुरल मैरिज कहिए अथवा अननेचुरल अलायंस कहिए, यह तो मैं नहीं कह सकता। किसे नेचुरल मैरिज कहते हैं इसको भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता, किसे अननेचुरल मैरिज कहते हैं उसे भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देखता हूं जिसे नेचुरल मैरिज कहा जाता है वह भी नेचुरल मैरिज कब टूट जाएगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं शशि थरूर साहब से कहना चाहूंगा, इसका फैसला तो आप So that it was not the governor's place to make a subjective determination as to the political, ideological compatibility of the parties. The place was on the floor of the assembly. Please, Barbara. No, I'm sorry. आप इनको एक्सपर्ट ऑफ मैरिज मानते हो क्या? What is this going on? अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता। क्या नहीं, आप अपनी वर्चन दीजिए। अच्छा, मैं लगातार बोलता रहूं। हाँ, ये बीच में ऐसा नहीं होता है। जब मैं इंड नहीं कर रहा हूं उसके बाद भी सदस्य बोले जा रहे हैं तो ये तो वेरी अनफॉर्चुनेट। नो, कश्मीर पे नहीं हंस रहे हैं। ये कश्मीर पे नहीं हंस रहे। प्लीज बैठिए। एक मिनट। इस हाउस के एक सीनियर मेंबर हैं, सीनियर लीडर हैं। यदि कोई बात उन्होंने कह दी तो उस पर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। शांत रहिए। ये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कृपया इस गवर्नमेंट के इंटेंशन पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए संदेह नहीं किया जाना चाहिए, यदि हमारा इंटेंशन खराब होता, हम कुछ और जम्मू कश्मीर में करना चाहते अथवा हम किसी और की गवर्नमेंट बनाना चाहते, तो हमारे पास तो राज्यपाल शासन का पूरा 6 महीने का समय मिला हुआ था अध्यक्ष महोदय। उसमें मैं कर सकता था। उसमें जो तोड़ फोड़ करनी थी वो भारतीय जनता पार्टी को यदि गवर्नमेंट बनानी होती तो दूसरों के साथ बातचीत करके इस काम को कर सकती थी, लेकिन 6 महीने तक हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। अंत में भी नहीं किया। मैं ईमानदारी की बात कहना चाहता हूं, हो सकता है 1-2 लोगों ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट की हो ऐसी, लेकिन हमारी तरफ से अथवा हमारी सरकार की तरफ से Please, nothing will go on record, only minister's statement. जहां तक
जहां तक आप बात करिए। जहां तक कश्मीर की नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप अपनी जहां तक कश्मीर की समस्या के समाधान का प्रश्न है, कश्मीर की समस्या या कोई यह नहीं कह सकता है कि 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, कश्मीर की समस्या एक बहुत बड़ी पुरानी, एक गंभीर समस्या है, और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति भारत का चाहता है कि कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए। कश्मीर के लोग हमसे अलग नहीं हैं, कश्मीर के लोग भी हमारे परिवार के ही हैं। कश्मीर के ऐसे हालात देखकर हर व्यक्ति को जो है तकलीफ होती है। तो और बार बार 4 साढ़े 4 वर्षों में हमारे जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात के साक्षी हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बात के साक्षी हैं। अध्यक्ष महोदय, बार बार मैंने अपील की है कि मैं सभी के सहयोग से समाधान करना चाहता हूं, और जम्मू कश्मीर की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर यदि मिलता है तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बताओ कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। 2 बार ऑल पार्टी डेलीगेशन भी लेकर जम्मू कश्मीर वहां गए। कुछ लोगों ने कहा कि साहब वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय, फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात के साक्षी हैं, जम्मू कश्मीर के हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस बात का साक्षी है। मैंने कहा कि हमें किसी से बात करने में कोई परहेज नहीं है, जो भी बात करना चाहेगा उससे हम बात करने को तैयार हैं। मैं एक और चीज यहां पर डिस्क्लोज मैं करना चाहता हूं। जिस समय ऑल पार्टी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में गया था तो हमारे कुछ दूसरी बैठे हैं जयप्रकाश जी यहां पर, लोगों ने मुझसे पूछा कि हम लोग मिलने जाना चाहते हैं वहां कुछ नेताओं से, अलगाववादी नेताओं से, कि जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप लोग जाना चाहते हैं तो आप जाइए। वहां पर गए और उन लोगों को किस तरीके से वापस होना पड़ा उसकी चर्चा करना भी यहां पर उचित नहीं है। वहां की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी से भी हमारी जो बात हुई थी, महबूबा मुफ्ती जी ने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। और जब से हमारे भाई साहब फारूक अब्दुल्ला साहब जब मिले हैं तब मैंने उनसे कोशिश की है। आपको लगता है तो आप ही कुछ ऐसा इनिशिएटिव लीजिए ताकि वहां की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, विडंबना है कि वो नहीं हो पाया। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा। कश्मीर के हालात तो एक समय ऐसा था कि बहुत ही नाजुक थे अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट लाने की हम लोग अपनी तरफ से जितना अधिक से अधिक हो सकता है वह कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम लोगों ने जो अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस, यह सब सारे हुए हैं। उसकी चर्चा हमारे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है, और मैं कह सकता हूं पोलिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा था। लेकिन ऐसे 2-3-4 जिले थे जहां पर कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप पोल परसेंटेज नहीं था। नहीं तो इतना ही नहीं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां की अर्बन लोकल बॉडीज के हैं और पंचायत के हैं, उनको अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हम दे रहे हैं। पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी नहीं था, न तो उनके पास कोई फाइनेंशियल पावर था। हम फाइनेंशियल पावर भी हम लोगों ने दे